अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी। कौन कौन थे वो बच्चे जो कल रह गए थे? रिमेनिंग स्टूडेंट्स प्लीज कम टू टॉक अबाउट द गिवन टॉपिक। आइए भाई। ये कल वालों को फिर से बुला लूं एक बार और? कल वाले बच्चे हमारे रेडी हो जाएंगे एकदम। बोले सर फिर बुलाइए, फिर बोलते हैं धमाकेदार जैसे कल बोला है। ओके, इनवाइट ब्रदर शामिल। Assalamualaikum. जी। Good evening, everyone. First of all, I would like to Allah for this golden opportunity. I am very thankful to my teacher Jakaria sir giving me for wonderful chance to speak about words. About words. Seeking seeking knowledge in the light of Islam. So today, so today I would like some words about topic. Read of prophet in the in the Lord of in the Lord of your Lord. Sorry, sir. कोई बात नहीं बाबू, शाबाश शाबाश, बढ़िया। ऐसी तो आएगा बोलना। ऐसे ही आएगा। और आपने तैयारी की थी माशाल्लाह, कोई बात नहीं, अच्छा है आपने। बस करना इतना कि थोड़ी सी तैयारी और बढ़ा देना बस। ठीक है बाबू। और जैसे अच्छे से Okay. तैयार करके फिर घर पे, जैसे आपका रूम है अकेला जहाँ पे आप बैठे हो, तो वहां ये समझ के बोलना कि मेरे सामने कई सारे लोग, मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ। ठीक है। सर, शकील भाई को सुनाया था तो क्लियर सुना दिया था, पर पता नहीं क्या नर्वस हो जाते हैं, सब चला जाता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बाबू, आ जाएगा आ जाएगा। ठीक है, ये जाता नहीं है कहीं, ये माइंड में ही रहता है। ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाएगी ना तो वो और जल्दी जल्दी निकल के आएगा बाबू। आइंदा जब आपको टॉपिक दिया जाएगा तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा बोलेंगे, अल्लाह ने चाहा। ठीक है बाबू। जी इंशाल्लाह। बेहतर है। नफीस ब्रदर। Assalamu alaikum, sir. My respected teacher and my dear friends. Good evening, everyone. First of all, I would like to thank Allah Almighty for this golden opportunity. And then, uh, and then I am very thankful to my teacher Zakaria sir for giving me for giving me for giving me such a wonderful chance to speak on the topic. Topic is seeking knowledge in the light of Islam. So, so today I want to speak about this topic. So I want to speak some words about this topic. Knowledge is the light that removes the darkness of ignorance. Islam gives great importance to gaining knowledge. Gaining knowledge. Therefore Allah Almighty in the Holy Quran. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Its translation, are those who know equal to those who don't know. Its meaning is that knowledgeable people and ignorant people can never be equal. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin." Seeking knowledge is an obligation upon every Muslim. Its meaning is that
its meaning is that gaining knowledge is gaining knowledge is भूल रहा हूँ सर gaining knowledge is that is why education guides us in every field of life. Nations that value knowledge progress while ignorant ones remain behind. That's it. ग्रेट माशाल्लाह, अरे वाह, बहुत अच्छा बोले ब्रदर नफीस, अमेजिंग, माशाल्लाह, क्या बात है। जी जाहिद, टर्न ऑन द कैमरा देन स्पीक। कैमरा ऑन करके बोलिए दोस्त। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Good evening, everyone. First of all, I would like to God for Allah. I would like to thank for God Allah for this golden opportunity. Then I am very thankful my teacher. Thankful my teacher for giving me such a wonderful chance to speak on the topic seeking knowledge in the light of Islam. So today I want to speak some word about this topic. The Holy Quran, Allah's book. Allah says in the Holy Quran, "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq." Its meaning is study and achieve the knowledge, because no life without knowledge. So we should learn the knowledge. The knowledge guides in all fields of life. Knowledge is very important to live in world. Knowledge is very important to success in life. Knowledge is very important to other field. Knowledge is very important to communication other person. The knowledge shows way of success life. The prophet of Allah said, "Talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin wa muslima." The knowledge to learn on obligation every person. So every person should learn the knowledge. ग्रेट माशाल्लाह, End हो अच्छा गया सर। बहुत बढ़िया, अच्छा बोले आप, शाबाश। ओके आइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी बाबू। Firstly, I am thankful to Allah who made me able to speak, and thankful to Zakaria sir who has given me a chance to speak. Respected Zakaria sir, my dear brothers and sisters, today I am going to tell about seeking knowledge in the light of Islam. Allah raises those who have knowledge in ranks, and the knowledgeable person is held in high regards about both Allah subhanahu wa ta'ala and people. Allah subhanahu wa ta'ala revealed first ayah about seeking of knowledge by angel Jibrail alayhi salam. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, which mentioned in Quran by name Surah Alaq. It means, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, read in the name of Allah. Read in the name of your Lord who created. In Sahih Ahadith, Bukhari wa Muslim, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said,
Talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Seeking knowledge is an obligation upon every Muslim woman and man. Knowledge in Islam is not limited to only religious studies, but it include all beneficial sciences who promote who, who promote uh, human welfare. Seeking knowledge helps believers to fulfill their responsibilities, improve their characters, and contribute positivity to society. Allah in Islam. Sorry sir. ओके, शाबाश, कोई बात नहीं, ग्रेट, माशाल्लाह। ये बच्ची हैं, बच्चे सर हैं? जी मेरी बेटी अभी नींद से जागी। अरे मेरा बेटा। माशाल्लाह Islam माशाल्लाह। अच्छा। highly हाँ। Islam highly encourage to pursuit of knowledge. Allah subhanahu wa ta'ala said in Quran, Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis silmi kafa. O believers, enter in knowledge completely, which means acquiring knowledge is a lifelong journey, and the reward of learners and scholars is immense both in here and hereafter. May Subhanahu wa Ta'ala grant us such knowledge that is beneficial other people. Ameen. ओके, शाबाश, ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा बोली बाबू, आप बहुत बढ़िया, और अच्छी तैयारी की आपने, शाबाश, बहुत बढ़िया। जी वरी, आओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। अभी अजान हो गई है। ओके, ब्रदर दानिश, इनके हैंड रहने दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Assalamu alaikum everyone. First of all, I would like to thank my Allah that He has given me, Allah has given me the chance, and also I would like to thank to Zakaria sir that he is giving me chance to speak on the important topic, the that seeking knowledge, importance of seeking knowledge in the light of Islam. So, first of all, I will represent my thoughts and the important lines on importance of uh, knowledge in Islam. So, Islam encourages the knowledge for Muslims. Uh, our Prophet Muhammad said that knowledge is the duty for every seeking knowledge is the duty for every Muslims, and knowledge the Quran and Hadith are the main sources for knowledge, and the Quran is the best form of source for knowledge, and if sorry sir, yeah, I कंटिन्यू। forget everything. Yeah. So basically, if you know the knowledge, if you have the knowledge, then only you can live a life in a correct way, right? Knowledge knowledge tells you that which is right, which is wrong, right? And if you know the knowledge about the Islam, you can then only you can live a good life. You will get the success here and hereafter, right? Because Islam tells you how to eat, how to perform namaz, how to do exercise, how to take a ghusl. So if you read the Quran and Hadith, then only you will get the knowledge about your life, living a life, proper living a life, right? So
It's all about knowledge. If you want to get success here and hereafter, you need to get the knowledge from the Quran and the Hadith, correct? And both knowledge removes the ignorance from the society. Here also we are here we are present to get the knowledge, correct? So uh, according to me, knowledge is uh, everything which we live a life nowadays. It's because we get some knowledge, correct? And uh, that's all, sir. ओके That's ग्रेट, all. क्या बात है Thank you. तानी, स्पोक वेल Thank माशाल्लाह, you so much. बहुत बढ़िया। अच्छा है, ओके बेटी, जस्ट अ मोमेंट। यस, इनवाइट, वरी आओ बेटे। आओ बेटे। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम, प्लीज। Assalamu alaikum, sir, and all my dear friends. Today, my topic is seeking knowledge in the light of Islam. First of all, I am very thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for giving me this opportunity. And then, I am very thankful to my teacher, Zakaria sir, for giving me such a wonderful chance to speak on this topic. Islam is a religion built upon understanding, wisdom, and reflection. From the very first revelation, the first word sent to
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was Iqra, means read. This single command highlights that knowledge is the foundation of faith, guidance, and human progress. Allah says in the Quran, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Are those who know equal to those who don't know? This verse reminds us that people of knowledge hold a special and elevated status in the sight of Allah. Allah says in the Quran, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah raises the ranks of those who know, Allah raises the ranks of those who believe, and those who have been given knowledge. Shabash, shabash. This means that people of ilm are honored by Allah Himself. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Al-ulama warathatul anbiya." The scholars are heirs of the prophets. My dear brothers and sisters, if we want to rise again, we must return to ilm. If we want to strength, unity, and progress, we must return to ilm. May Allah fill our hearts with the love of knowledge and make us among those who spread beneficial knowledge. Ameen. Thumma ameen. Thank you. शुक्र, क्या बात है, गजब, बेहतरीन, माशाल्लाह, क्या बात है मेरा बेटा, बहुत गजब बोली हुई बच्ची, अंदाज ही बड़ा प्यारा था, क्या बात है, माशाल्लाह। अरूज, प्लीज गुड़िया। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Good evening, everyone. First of all, I would like thanks to Allah for this golden opportunity, and then I am very thankful my teacher for giving me chance this topic, seeking knowledge in the light of Islam. Seeking knowledge is very important. Seeking knowledge is a very important in Islam. The first one revealed in the Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, which mean read in the Quran, which mean read in name of Allah who created. Islam teaches that seculars are highly respected because of these wisdoms. Through knowledge we understand what is right, what is wrong. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, seeking knowledge is a duty for every Muslims. When we seek knowledge with good intentions, Allah bless with success. Learning both religions. Worldly knowledge is Continue. Shabash, shabash. Learning both religions with knowledge is valuable. Thank you, sir. ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बोली बेटी आप, गजब उरूज, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, अच्छी तैयारी भी की है, शाबाश। नूरी फातिमा। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, Good प्लीज। evening, my dear brothers and sisters. I am very thankful to Zakaria sir because giving me good chance to speak. My topic is seeking knowledge in the light of Islam. Knowledge is a nur in Islam. Knowledge is described as nur that guides heart and mind. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Whoever travels a path seeking knowledge, Allah will make his path to Jannah easy." To Jannah easy. Who first command of the Quran, Iqra. Iqra. Allah's first revelation was that shows Islam begins with learning. Seeking knowledge is
Seeking knowledge is worship, studying Islam, learning Quran, learning Hadith. But intention is sincere. Seeking knowledge benefits of seeking knowledge brings you closer to Allah, improves your character, makes worship more meaningful, give confidence and wisdom, becomes a sadqa jariya. Thank you, sir. ग्रेट, अरे वाह, बहुत अच्छा बोली नूरी आप, ग्रेट बाबू, गजब। हम्म। अच्छा, बेहतर है जी। कौन कौन है भाई बच्चे वो हैंड रेस करिए जिन्होंने कुछ बोला नहीं है, उनसे कुछ बुलवाना तो है, चाहे वो आगे यही बोलें कि सर हमने तैयारी नहीं की, ये भी बोलो आगे। कौन कौन है? ऊपर से देखते हुए आता हूं जरा। आफरीन डन, आयशा सिद्दीका डन, दानिश डन, नफीस डन, राशिद इनवाइट, राशिद कम। सलाम वालेकुम सर। बाबू कहाँ हो आप? तैयारी नहीं की है सर। याद करें मेरे अजीज हैं, देखो बहुत फायदा रहेगा, इसे हल्के में मत लो आप। आपसे मैंने कहा सिर्फ 10 लाइन्स याद करनी है यार, क्या रखा है 10 लाइन्स में? और याद थोड़ी करनी उनको, एक बार आपने अगर लिख लिया तो आज लिखते लिखते 50% तो वैसे ही याद हो जाएगा। 5 मिनट और दे दे तो वो याद हो जाएगा। तो 10 मिनट नहीं दे सकते बाबू? आसान है ना, दे दीजिए 10 मिनट तो। जी जी और वक्त इंशाल्लाह निकालो, सर। बिजी शेड्यूल में से निकालो थोड़ा सा वक्त, वो निकल जाता है। ये कुछ अल्लाह पाक ने निज़ाम कुदरत ऐसा बनाया है, कितना बिजी शेड्यूल हो, आप 10 मिनट की कोई चीज ऐड करना चाहें तो उसमें एडजस्ट करके ऐड हो जाती है, कितना ही बिजी हो, सच में हो जाती है। ठीक है, तो उसकी कोशिश वजह उसकी क्या है? बहुत सारा हम टाइम ना ऐसे ही जाया कर देते हैं, हमें रियलाइज नहीं हो पाता सच में। आप अंदाजा लगा लेना आज ही, कितना टाइम हम वैसे ही जाया करते हैं, मैंने फोन में कर दिया मसला, फोन निकाला, अब अम्मी जी बैठी बराबर में, वैसे ही आए थे आप, और अम्मी सब खैरियत हैं, हालांकि अम्मी से मुलाकात के लिए आए हैं, तो वहां भी आपके हाथ में फोन है, फोन चल रहा। ये जो टाइम है ना आपका, ये जो वहां जाया कर रहे हो इस अंदाज से, अम्मी के पास गए हो तो अम्मी की पास सुनिए, अम्मी की बात सुनिए, उनके सामने बैठिए आप। कहीं और आप जा रहे हैं तो पता चला फिर आपके हाथ में मोबाइल है। तो ये जो सिस्टम आप चला रहे हैं ना, इसमें बहुत टाइम आपका जाया होता है। हाँ, काम के लिए कोई फोन है आपका, मान लीजिए कोई वर्क भी कर रहे हैं तो एक अलग मसला है। मान लीजिए मोबाइल में आप अपना कोई खास काम भी कर रहे हैं, तब तो सही है, वरना बेवजह हम कितना टाइम जाया करते हैं। सच बताऊं, कई कई घंटे हम वैसे ही जाया करते हैं जिसका कोई फायदा नहीं मिलता। तो इसलिए मेरे भाई, आप अब ना वक्त की कदर करो अपने। वक्त की कदर करने वाले ही लोग दुनिया में कामयाब हैं। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते तो वक्त उनकी कदर नहीं करता। ठीक है, इसलिए आप वक्त की कदर करें, और वक्त की कदर करने का मतलब ये है कि उस वक्त से आप फायदा उठाइए चीजों को याद करके। वक्त की कदर करने का मतलब ये है कि आपके अंदर क्वालिटी और काबिलियत आए। वक्त की कदर करने का मतलब ये है कि आपके अंदर जितनी भी खूबियां आप ला सकते हो उनको अपने अंदर लाइए। दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ टाइम। तभी समझा जाएगा कि हाँ, वक्त की कदर की जा रही है। इसलिए मेरे भाई, इसे में आप कोताही मत करिए। ठीक है, इस बार तो चलो कुछ बच्चे रह गए, वो नहीं बोल पाए, लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बच्चा हमारा इसमें हिस्सा ले कि नहीं सर, आपने टॉपिक अच्छा, इतना मुश्किल तो नहीं था ना बाबू, आसान था ये तो। मतलब इल्म हासिल करने के बारे में हमारा इस्लाम हमें क्या कहता है, ये इस्लाम में इल्म हासिल करने के बारे में क्या है। कोई बच्चों ने इतनी अच्छी अच्छी आयतें कुरान करीम की पढ़ी। अरे भाई, वो कुरान करीम हमारा जो आया है, वो लोगों के अंदर से जहालत और इग्नोरेंस खत्म करने के लिए तो आया है। जब इंसान पढ़ा लिखा होगा तो उसके अंदर से इग्नोरेंस खत्म होगी ना, जहालत खत्म हो जाएगी, एजुकेटेड बन जाएगा वो। तो कुरान की सबसे पहली तालीम यही है कि कुरान का मिजाज भी ये है कि वो चाहता है कि बंदा एजुकेटेड बन जाए। नो बाबू,
such a great student is telling this. What about the others then? Okay. हाँ, तो इसमें कोशिश करनी बाबू, ठीक है। उसमें आप देखो कोशिश करने करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। देखो बगैर कोशिश के नहीं होता यार, कुछ नहीं होता सच में दुनिया में। और आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे ना किसी चीज को, तो फेल होते रहेंगे आप फिर। जहां भी, चूंकि कोशिश करने का मिजाज नहीं है ना आपका, तो आप जिस मैदान में भी जाओगे कोशिश करोगे नहीं तो क्या हो गया, फेल, घर वापस आ जाओगे। वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बाबू। नहीं नहीं, जब एक कदम रख दिया तो हटना तब है जब कमांड हासिल हो जाएगी। हटना तब है जब कमांड हासिल हो। कितने बच्चे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने ये कह रखा कि सर हम आपके सुपुर्द हैं, आप हमें जैसा चाहें वैसा इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हमें अंग्रेजी आ जानी चाहिए। मसला 6 महीने का नहीं है, मसला है अंग्रेजी आ जाने का, बस वो आ जाए हमें। अब जाहिर है कोई बच्चा जब इस तरह मुझसे कहेगा तो ना चाहते हुए भी दुआ निकलती कि अल्लाह पाक ये तेरी जबान इस बच्चे को सिखा दे। इसे कितनी ज़रूरत है बेचारे को, ये जो है ये चाहता है कि मुझे ये चीज़ आ जाए। एक बच्चे का मेरे पास कॉल आई, वो पर्सनल क्लास के ताल्लुक से बात थी। तो पता नहीं वो शायद लखनऊ के हैं, कहाँ के हैं। तो उन्होंने बताया कि सर मैं, मुझे पर्सनल क्लास आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैंने उनको बताया पर्सनल क्लास के बारे में। वो बोले सर आप बुरा मत मानिएगा, एक बात कहना चाहता हूँ। अरे भाई मैं क्यों बुरा मानूंगा, बताओ। कोई मेरी गलती होगी तो मुझे बता दो, मुझे तो अच्छा लगता। तो मुझे बता दे सर आपके अंदर ये वाली कमी है, भी इसे और सही कर लो, तो मुझे तो अच्छा लगता। यार ये तो मेरा बहुत बड़ा खैर खा है, मुझे अच्छी चीज़ बता रहा ना, तो मैं तो कबूल करता हूँ, सच में करता हूँ। मतलब वैसे ही नहीं कह रहा मैं आपके सामने। तो बंदा मुझसे कहे कि सर ये वाली बात आपकी ज़रा सही सी नहीं है, इसको चेंज करिए आप। तो अगर सच में ऐसा होता है तो मैं चेंज करता हूँ उसे। मालूम है क्यों? इसलिए कि जो अच्छे लोग हैं उन्होंने ये लिखा है कि अच्छे लोगों की अलामत ये है कि वो अच्छाई को फौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपने, आपको एक कोटेशन याद कराया था मैंने, पता नहीं किस बच्चे को याद है नहीं है। अगर किसी को याद हो तो हैंड रेज करिएगा, पढ़ के बता रहा हूँ। देखता हूँ किसको याद है, सुनूंगा भी। पढ़ के बता रहा हूँ लेकिन ध्यान से सुन लो, एक बार ही बताऊंगा। उसमें से एक छोटा सा हिस्सा है जो मुझे अपनी बात से मिलाना है। उसमें था, delete negative people, forget your past, accept your mistake and restart your life। ये जो है ना, accept your mistake, ये बहुत अहम चीज है। ये अच्छे लोगों की अलामत है, ठीक है। तो वो यही करते हैं कि अपनी गलती तस्लीम कर लेते हैं। उनको उनको पता है हाँ मेरी गलती ठीक है भाई साहब। और कुछ नहीं जाता बाबू गलती अगर हो तो मान लेने में। बल्कि मैं तो इससे आगे बढ़ के कहता हूँ गलती ना हो तब भी मानने में फायदा है। सच में बड़ा कूल रहता है आदमी। अच्छा बेवजह दूसरे से आप आर्ग्यू करते रहो, उससे दलाइल पेश करते रहो कि नहीं ऐसा नहीं था, वैसा था, यूं था, वो था, कुछ नहीं, हाँ ठीक है भाई ये गलती है, आइंदा नहीं होगी, बस छुट्टी, बात ही खत्म। तो ये सबसे कूल रहने का तरीका है। मैं तो भाई ऐसे ही करता हूँ बच्चों। बाकी आप लोगों को भी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। गलती नहीं हो आपकी, हाँ भाई साहब चलो सॉरी, और बताओ। सामने वाला आधा डाउन हो जा सॉरी सुनते ही कि चलो सॉरी बोल दी। मतलब उसके अंदर जो वो होती ना ईगो, उस ईगो पे आधा पहाड़ टूट जाता है सॉरी बोलते ही। दोबारा बोली भाई एक्सट्रीमली सॉरी मेरे भाई। और अगर भाई का लफ्ज बोल दिया तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। लेकिन कोई आप में से बच्ची, उनको भाई मत कह देना अपने। कभी कहो कि सॉरी भाई, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरीके से कोई यहाँ अगर वैसे बैठे हो तो वो उनको बहन बहन मत बोल देना कि बहन सॉरी। ठीक है, मतलब ये चीज, ये तो मैंने वैसे ही मिजाह में बोला है। तो सॉरी बोलने से जो है सही रहता है मामला। तो बहरहाल देखिए बात किधर से किधर को निकली है। बात मैं अर्ज यही कर रहा था कि आप अपने अंदर वक्त की कदर करते हुए क्वालिटी लेकर आइए। अगर आप क्वालिटी अपने अंदर लाते हैं और वक्त की कदर करते हैं तो फिर इंशाल्लाह ये वक्त आपका बड़ा साथ देगा। सच में बहुत साथ देगा। फिर ये वक्त आपको बहुत कुछ बनाएगा, लोगों के लिए आइडियल और नमूना बनाएगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, तो जाहिर है। अच्छा बात मैं वो बता रहा था उस बच्चे की, उसने कहा कि सर वो पर्सनल क्लास के बारे में ना मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ सर। मैंने कहा भाई बताइए क्या बात है। बोले सर मैंने एक जगह पर्सनल क्लास ज्वाइन की थी, उन्होंने वो धक्कापेल जो की है सिलेबस की। क्योंकि मान लीजिए सर आपके जैसे 6 महीने का कोर्स है, अब इसको आप 3 महीने में पढ़ाएंगे तो तेज पढ़ाएंगे। मैं कहा हाँ भाई बिल्कुल,
बोले सर वहाँ उन्होंने बस ये सोचा कि 33 पढ़ा दो इनको, समझ में आया नहीं आया तो उन्होंने जल्दी जल्दी पूरा कोर्स करा दिया और मुझसे बहुत अच्छे से पैसे ले लिए। अभी मैं देखता हूँ उस बच्चे की रिकॉर्डिंग अगर आई होगी ना तो आपको लाइव सुनवाऊंगा। बेटा मेरा फोन दीजिए। मैंने उसको उसको जवाब दिया था तकरीबन 3 बजे के आसपास। अगर उसका रिप्लाई आएगा मैं अभी को लाइव सुनवाता हूँ। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारी जो रेगुलर क्लास हो रही है उसका ड्यूरेशन 6 मंथ का है और पर्सनल में बता रहे हैं 3 मंथ का है, इसमें सिलेबस सेविंग क्या अलग हो? क्योंकि मैं इससे पहले भी एक जगह पर्सनल क्लास ली। ये इसकी पुरानी रिकॉर्डिंग है। सर पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारी जो रेगुलर क्लास हो रही है इसका ड्यूरेशन 6 मंथ का है और पर्सनल में बता रहे हैं 3 मंथ का है, तो इसमें सिलेबस सेम ही होंगे या अलग होगा? क्योंकि मैं इससे पहले भी एक जगह पर्सनल क्लास ले चुका हूँ लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है और मैंने उसके लिए अच्छी खासी फीस पे की, लेकिन जी एक्सपीरियंस सुन लिया आपने। उसने ये कहा कि सर धनिया भी फायदा नहीं हुआ, तो मैं अपने अंदाज में बोल रहा हूँ, धनिया भी फायदा नहीं हुआ मुझे। और मैं ये कहता हूँ कि मेरे यहाँ अभी 1 महीने बेटा वो जो सुबह में क्लास है कितना महीने हुए उनको पढ़ते हुए? 1 मंथ हुआ बता रहे हैं। 1 महीने बाद उस बच्चे को शायद आप लोगों में से किसी क्लास में था, पर्सनल क्लास है उसकी। 1 महीना हुआ है। आज मैंने कल परसों की बात है, जब मैं वो मैकबुक लेने के लिए आया था, मैं टैब वो लेने के लिए आया था यहाँ से अपना लैपटॉप। सुबह सुबह में मैं आया, क्लास चल रही थी एकदम फजर के फौरन बाद। तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा, क्यों मालूम है? वो बच्चा सिचुएशन पे बोल रहा था भाई। सिचुएशन जो तुम्हारी अगले महीने शुरू होगी एडवांस लेवल में, वो 1 महीने में वहां पहुंचा पड़ा है, बोल रहा है वो। और एक मिस्टेक नहीं उसकी, एक भी मिस्टेक नहीं। मुझे इतनी खुशी हुई सुन के, मैंने अल्लाह तेरा शुक्र। मतलब जो हम एक निज़ाम बनाना चाह रहे हैं कि हमारी पर्सनल क्लास हो तो ऐसी हो कि बच्चे को फायदा होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ यार मैं कुछ सीख रहा हूँ यहाँ। मैं अगर अपना पैसा दिया है मैंने, तो मेरा पैसा सही जगह गया है। मैंने फिर उस बंदे से अगले दिन खुद पर्सनल बात की, तो इतना खुश हुआ कि सर आपका बेपनाह शुक्रिया सर, सर आपने ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बनाया और मुझे मेरे एतबार से आपने टाइम दे दिया। मैं सुबह में चाह रहा था सर, वो मिल गई। वो उल्टा मेरा शुक्रिया इतना अदा कर रहा बेचारा। तो बताने का मकसद ये है कि मैंने उसको यही जवाब दिया, मैंने कहा भाई ये मैं किसी भी बच्चे का जो पैसा है ना, उसके खून पसीने की कमाई हो से जाया नहीं होने देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कदर है उसके पैसों की। मेरी यहाँ वो सीन नहीं है कि इसे भी खींच लो और उसे भी खींच लो, नहीं। वल्लाह पाक जो ऊपर सारा निजाम चलाता है ना, अगर जो बंदा इस तरह करता है वो चंद दिन का मेहमान रहता है, मार्केट से अल्लाह उड़ा देता है उसे। वो इसलिए उड़ाता है अल्लाह कि तो लोगों की जेबों पर नजर रख रहा है, इसका मकसद फायदा पहुंचाना ही नहीं है। और जिसका मकसद फायदा पहुंचाना है तो सुन लो, व अम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्ज। कुरान कह रहा है कि जो फायदा दूसरों को पहुंचाता है, और इसमें कोई कैद नहीं है कि मुस्लिम फायदा पहुंचाए या नॉन मुस्लिम या मुस्लिम को पहुंचा, नहीं। अल्लाह कुरान में कॉमन बात कह रहा है, जो भी जिसे फायदा पहुंचाएगा। तो ये ऊपर वाला सुपर पावर मालूम क्या करता है? सारी दुनिया में उसका फैज, उसका बेनिफिट और उससे फायदा हर बंदे तक पहुंचा देता है। वो बनिए आप। इसी आयत और कुरान की इस चीज को लेकर हम अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते हैं, ताकि हमसे फायदा हो, लोगों को हमारी जात से फायदा हो। ये इंटेंशन अगर होगी तो अल्लाह कुछ भी निजाम लेकर बैठ जाओ आप, सिस्टम अल्लाह बढ़ाएगा उसको। अलम ठीक है मेरे भाई। आज इतनी सारी क्लासेस हैं। स्टार्टिंग में सिर्फ 20 बच्चे थे, 20 बच्चे थे। और इससे पहले अगर आऊं तो स्टार्टिंग में 5 बच्चे थे। आज बैच चलते हैं सुबह से लेकर रात के 10:30 बजे तक। क्यों? सवाल है क्यों? कुरान की आयत, फायदा पहुंचाओ फिर देखो अल्लाह कहाँ पहुंचाएगा। ये नियत रखो बस अपनी, यार फायदा हो जाए हमारी जात से। ठीक है सबा गुड़िया, आप कुछ कह रही हैं और टाइम हमारा हो गया बाबू, आपको पर्सनल पे बताएंगे, मुझसे वहां पूछ लेना गुड़िया। हैं शाबाश। ठीक है बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।